Hello everyone, welcome to Olive Board. Are you guys preparing for UPSC, EPFO, EOAO or APFC examination 2025? And what if I tell you that most of the aspirants are wasting months of studying the irrelevant topics while the toppers crack it by following a very smart strategy related to the syllabus? And this particular video we are going to discuss about the complete syllabus breakdown for the UPSC, EPFO examination. So we all know the exam pattern that first we need to do the recruitment test and then there is the interview. Marks is 300 of this particular test and the number of questions that you need to attempt are 120 questions. The duration will be 2 hours. Now there are a lot of subjects in both EOAO and APFC. So some of the common subjects that are common for both, whether you are preparing for EOAO or APFC, are mentioned here, like general English, Indian polity and economy, general accounting principles, industrial relations and labors, social security, because these are the general topics that are common for both, right? And some of the exclusive topic that are unique to the APFC syllabus is Indian culture, heritage and freedom struggle, population, development and globalization, auditing and insurance and statistics. These are the 4 broad topics that are particular to APFC examination, and these topics are common for both EOAO examination and APFC. Now UPSC, EPFO, they are giving you a broad list as per the notification, as per the official notification. They are giving you a broad list of the topics that you need to study. However, the problem is, आपको कैसा पता चलेगा कि इनकी डिटेल्स क्या क्या पढ़नी है आपको, राइट? इफ आई टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश, देन व्हाट शुड यू गाइस स्टडी इन जनरल इंग्लिश? कौन से की टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस रखना पड़ेगा? जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स, कौन से की टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा? So we have all done the PYQ analysis, and on the basis of that I'll be suggesting you what are the broad topics that you need to cover in order to clear this examination. Okay, let's start with the general English first. So here I have mentioned some of the common topics जो सारे एग्जाम्स के अंदर कॉमन ही रहते हैं. यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर से भी इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? ये सारे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, एडजेक्टिव्स, ये सारे आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. वी कैन सी दैट पास्ट ईयर पेपर के अंदर इनका मैक्सिमम वेटेज यहाँ पे रहा है. ओके, सो जस्ट लाइक दैट आई विल बी टेलिंग यू द एंटायर सिलेबस. ये दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन वीडियो जहाँ पे मैं आपको सब टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ जो जनरली सिलेबस के अंदर आपके मेंशन्ड नहीं आते हैं. नेक्स्ट इज द जनरल साइंस. तो फिजिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स है, लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन, लाइट एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये सारे आपको बेसिक चीजें हैं इनका. यू डोंट हैव टू गो इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. यू नीड टू कवर इन अ जनरल, इन अ more generalized manner. Then chemistry के अंदर these are the topics like physical and chemical changes, elements, compounds and mixtures, atoms, molecules, chemistry in your day-to-day life. Bio के अंदर we are having food components, health and diseases, cells and tissue, organ system. These are the topics जहाँ से previous year question के अंदर ज़्यादा marks के questions आए हैं, right? ज़्यादा number of questions आए हैं. Next is related to your space technology like satellites and orbits, Indian space program, importance of space agencies in the world. So you should be having a very broad understanding of these topics. Important technologies like nuclear technology, biotechnology, information and communication technology and nanotechnology are some of the things that are specific to APFC only. So space technology और important technologies आपकी जो है वो आपके APFC specific है, not for your EO and AO examination. Then we are having current affairs. So current affairs में आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज एंड अवार्ड्स. ये सारे टॉपिक्स ज्यादा पूछे गए हैं. सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज जहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, बिकॉज दे हैव गिवन यू जस्ट वन लाइनर्स इन द सिलेबस. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से पढ़ाई करें, ये सारे टॉपिक्स को कवर करने का आप प्लान बनाओ. Next is your Indian culture and heritage and freedom movement. This is a big topic. We can see that there are many subtopics in this particular topic, like decline of the Mughal Empire and rise of the regional powers, then advent of Europeans, rise of British in India, early reforms during the British rule. So ये थोड़ा सा आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक हो जाएगा, राइट?
जो पूरा इंडिया का जो हिस्ट्री है ब्रॉड वो आपको यहाँ पे उससे क्वेश्चंस यहाँ पे जनरली आते हैं। तो आई हैव मेंशन्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग हियर सो दैट आप आराम से ये वाले टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। एंड ऑलिव बोर्ड इज ऑल्सो ऑफरिंग कोर्सेज टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ योर UPSC EPFO examination. Then we are having population development and globalization. Now this is specific to APFC only. तो जो EO या AO का एग्जाम दे रहे हैं उनको ये टॉपिक्स पढ़ने की यहाँ पे नीड नहीं है. दिस इज APFC स्पेसिफिक ओनली. ओके, सो इंडियन जियोग्राफी की पॉपुलेशन हो गया, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंट, दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स. Then is governance and constitution of India. So here you need to know the constitutional framework of India, Indian Union and citizens, सेंटर स्टेट रिलेशन. सो यहाँ पे मैंने आपको सब टॉपिक्स डिफाइन कर दिए हैं जिससे आपको यहाँ पे कवर करने में इजी रहेगा. एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया, लेजिस्लेचर्स इन इंडिया, जुडिशरी इन इंडिया. तो आपको यहाँ पे ब्रॉड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. Then present tense in the Indian economy. Now in order to understand the Indian economy you at least need to understand the basics of economics. Otherwise आप ये broad trends कैसे जज कर पाओगे, कैसे आपको पता चलेगा. सो हियर दे हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी इन एम्प्लॉयमेंट. तो ये सब आप RBI में भी पढ़ते हो, सेबी में भी पढ़ते हो, ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है. मॉनेटरी पॉलिसी. सो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स मैं इसको बोलूंगा. दिस इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ यू नीड टू नो द प्रेजेंट एंड पास्ट ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक्स. देन यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट. देन इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी हो गया आपका, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये सारी ब्रॉड आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग या होना चाहिए. देन इफ आई टॉक अबाउट द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दिस इज स्पेसिफिक फॉर EO, AO प्लस APFC एज वेल, राइट. तो ये दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है टॉपिक, अलग से नहीं रहने वाला. अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, इसके अंदर आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके लास्ट रिपोर्टिंग टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक. रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं. डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग लाइक जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड अदर सब्सिडियरी बुक्स. बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, व्हाई डू वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपका बेसिक्स आपको आने चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के. देन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो फर्स्ट गाइज आई विल ट्राई टू समराइज इट टू यू फॉर अकाउंटिंग पर्पस. यू नीड टू फर्स्ट फॉलो द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर. पहले आप अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो. देन मूव टू फाइनल अकाउंट्स. How trial balance is prepared, how balance sheet, P&L, cash flow statement is prepared, right? Then you can move to the ratio analysis. Here, okay? So third preference will be ratio analysis. Second preference is your final accounts. First preference is your basics of accounts. Then you can go ahead and prepare the accounting standard. So in accounting standard, first I will advise you to prepare AS2, AS9 and AS10. First prepare these 3 accounting standards very well, and then we can discuss about the rest of the accounting standards as well. Then you can focus on definitely inventory and investment. ये topic भी important रहता है. We can see so many questions from this particular topic. Cash flow statement, again I consider it as a part of final accounts only, okay? So you'll be need to cover the cash flow statement with final accounts itself. और उसके बाद में आप शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करोगे. एंड लास्ट टॉपिक आपका रहना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला. This should be the steady sequence here, okay? In case if you are having any query, you can let me know in the comment section. I'll be happy to answer that query as well. If I talk about the APFC syllabus, तो यहाँ पे topics वही रहने वाले हैं. These are the only topics that you need to study. However, you need to study at a higher level, okay? So if I talk about AO and EO, then moderate to easy level will be asked in the examination. And if I talk about APFC, then you need to prepare at moderate to higher level. टॉपिक सेम रहेंगे, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, राइट. देन दिस ऑडिटिंग इज स्पेसिफिक फॉर APFC ओनली. सो ऑडिटिंग उसको ही पढ़ना है जो APFC का एग्जाम दे रहा है यहाँ पे. सो फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग मतलब बेसिक्स पकड़ लो आप ऑडिटिंग के. उसके बाद यू नीड टू नो हाउ डू वी प्लान ऑडिट. अब ऐसी ऑडिट थोड़ी चालू कर देते हैं जाते ही, पहले तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ना.
प्लानिंग करेंगे, देखेंगे कितने रिस्क हैं, क्या उन पे कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, कंपनी अकाउंट्स का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. नाउ दिस इज अ बिग टॉपिक, यू डोंट हैव टू स्टडी द एंटायर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का टॉपिक, नहीं तो पढ़ते पढ़ते एग्जाम निकल जाएगा पर कोर्स खत्म नहीं होगा. ओके, सो वी विल बी स्टडीइंग दिस टॉपिक इन अ स्ट्रेटेजिक वे. मैं आपको पहले वो वाले एरियाज कवर करवाऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, सो वी नीड टू स्टडी हियर द बेसिक्स ऑफ essays, like what essays is all about. You need to know about essay 200, you need to know about essay 240. ये कुछ इंपॉर्टेंट दो essays हैं जो आपको पता ही होने चाहिए. There are many more important essays as well जो मैं आपको डेफिनेटली पेड क्लास के अंदर कवर करवाने वाला हूँ. Then if I talk about the syllabus of APFC, we need to cover some of the additional topics as well. Okay, so basics of accounting, cost accounting हो गया आपका, inventory management खैर covered ही था, फिर भी यहाँ थोड़ा सा हायर लेवल पे you need to know about the inventory management as well. Then we have general taxation updates as well. So whatever general updates are there in GST, basics of GST and basics of income tax, you need to know the recent updates in GST and income tax, that too on a broader level. अगर कुछ बहुत exciting आया है GST में income tax के अंदर, कोई नया section add on हुआ है, कोई नया provision add on हुआ है, right, और आपको इनका basics पता होना चाहिए. Then meaning of amalgamation, absorption and internal reconstruction, you don't have to go into too much details of this topic. पहले ये एडिशनल टॉपिक्स में, पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए अमाल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का. देन बेसिक्स ऑफ एनपीओ एंड जॉइंट वेंचर शुड बी आल्सो ऑन अ लास्ट प्रायोरिटी फॉर यू गाइज. ओके, राइट. देन वी आर हैविंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज. अब आप देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंदर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ही डिपार्टमेंट आता है ईपीएफओ का, राइट. सो यू नीड टू नो अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, एंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज गोइंग टू be very important for your examination. So you need to have overview of industrial relation, Indian labor force, trade unions. Okay, these are the broad topics. Then you need to have a good understanding. Labor laws के अंदर आपका payment of wages हो गया, minimum wage act हो गया, right, trade union act, factories act. तो ये अब देखो पीएफ लगता किस पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस फैक्ट्रीज पे लगता है, तो वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा. वेजेस कंप्यूटेशन का बेस बनता है पीएफ के लिए, वहां पे आपको वेजेस के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे वहां पे काम करोगे एक्चुअल में, राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस आई विल से. ये वाला टॉपिक एक्चुअल में आपके काम आने वाला है जब आप एक ईओ, एओ या फिर एपीएफसी बन जाएंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से. ओके, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉई, रिलेटेड टू लेबर्स, रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एंड देयर वेजेस इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर सिलेबस. You should be having a great understanding on the labor codes as well, like code of the wages, industrial relation code, social security code, how things work in this particular sector in India. When I talk about insurance, this is a APFC specific only. So you need to know about the basic concepts of insurance. There is a risk, that's why there is a need of insurance, right? In order to cover the risk, we need to have insurance. Parties क्या क्या होती है इंश्योरेंस के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक गुड फेथ क्या होता है, राइट, प्रॉक्सिमेट क्लॉज क्या होता है, सैब्रोगेशन क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होता है. तो बेसिक चीजें आपको इंश्योरेंस की यहाँ पे पता होनी चाहिए. प्लस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का एंड सोशल सिक्योरिटी. अगेन सोशल सिक्योरिटी तो आपका डिपार्टमेंट का मेन क्रक्स है. सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो. देन सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें ये कॉमन है बोथ फॉर ईओ, एओ एंड एपीएफसी. सो टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स विच आर देयर, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. तो आपको एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जिसको ईएसआई ऑफिस हम बोलते हैं, राइट, वो भी आपको पता होना चाहिए. एंड दिस विल बी दीज टू थिंग्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एक तो एम्प्लॉय फंड, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हो उसका एक्ट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. प्लस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्लोजली रिलेटेड है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से. ग्रेचुइटी का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ओके, देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नाउ इट इज हाईली डिजायरेबल और काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से भी आते हैं. सो एटलीस्ट यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स, डेफिनेशंस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, कैसे कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेस होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए. तो यहाँ अगर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक, ठीक है.
उसके बाद आपका प्रोसेसिंग वाला टॉपिक और नेटवर्क वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, 3 चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जैसे सारे एग्जामिनेशंस के अंदर जो आपका बेसिक क्वांट आता है, यहाँ पे भी आपका वही है। सो सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, simple and compound interest, averages, these are some of the important topics, right? So these things you need to broadly study in quant. In the quant you need to study these topics. फिर उसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे आपका अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट आ गया आपका, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशंस, राइट। सो ये आपके वेन डायग्राम हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया। तो ये आपके जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे आने चाहिए, ओके, बेस्ड ऑन द PYQ एनालिसिस। देन देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स इज ओनली APFC रिलेटेड। सो यहाँ EOAO के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है। सो क्योंकि APFC का लेवल काफी ऊपर आपके लेवल पे आ जाता है, राइट। It's a higher level profile, plus you need to have basic understanding of how auditing works, how statistics work. So data को देख के उसको ऑर्गेनाइज करना इनफ नहीं होता, यहाँ पे आपको एनालिसिस आने चाहिए एडवांस। So that's why they are teaching you statistics as well, core concepts and understanding related to it, mean, median, mode हो गया आपका, standard deviation हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, mean, mode, median आपका इंपॉर्टेंट है, प्लस बेसिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग कैसे होती है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है। सो यहाँ डिस्पर्जन और सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। डोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ दीज टॉपिक्स, ओके। देन इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैंने आपको ब्रॉडली पूरा सिलेबस बता दिया है और उसके सब पॉइंटर्स भी बता दिए कि उस सिलेबस के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने आपको प्रायोरिटी भी बता दी कि क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड विल बी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।